Assalamu alaikum beta. This is your English literature class. We have started comprehension paragraphs. Yesterday we did passage number 3 and passage number 2 was left, which we are going to do today. It is at page number 21 of your English literature worksheets. Hope you all have got the page. Okay. Beta, who will read the passage? Yes, Aman Faisal. Unmute yourself. Yeah. Read the passage, beta. Comprehension passage 2. We see a kind of milk in tins. It is powdered milk. All the water in this milk has evaporated. When fresh milk stays in a dish for a little time, the thick part of the milk comes to the top. It is the cream of the milk. From this cream, people make butter. If milk with the cream on it is made into powder, it is called full cream milk powder. When something floating in is taken off the top of a liquid, we say it is skimmed. When the cream is skimmed from the milk, the thin milk that stays is called skim milk. Skim milk is a good milk, but it has no fat in it. It is not good for very young babies. Okay, thank you, beta. You have read the passage, beta. Now all of you mention the date at the top of the page. What's the date today? April 28, comma 2021. Okay. Now I'm going to explain the passage. It's very easy passage. The passage is about the kinds of milk. You are all of you drink milk. You are familiar with the milk. There are different types of milk provided at our homes. One is the milkman milk. One is the milk brought by the milkman. It is in liquid form and usually it is open. Secondly is the milk in Tetra Pak. Tetra Pak milk is Milk Pack, Hurley, Allper, and others, which are in cardboard boxes. And the third one is the type of milk which is provided in tin packs. The milk is in tin packs is usually powdered milk. टिन में हमें पाउडर मिल्क ही मिलता है या हमें कंडेंस मिल्क भी टिन पैक में मिलता है और मोस्टली बट इट इज कंडेंस्ड तो आम जो है वो दैट इज पाउडर्ड मिल्क वी सी अ काइंड ऑफ मिल्क इन टिन्स हमें टिन्स में एक दूध की एक किस्म हमें टिन पैक में मिलती है अब वो जो हमें टिन पैक में मिलती है व्हाट इज इट इज पाउडर्ड मिल्क वो कौन सा होता है पाउडर्ड मिल्क फॉर एग्जांपल यू हैव पीडियाश्योर और वो जो इन्फेंट्स के लिए होते हैं एमएजी एफएमटी एंड एक्सेट्रा मतलब जो टिन पैक में आते हैं दे आर पाउडर्ड मिल्क all the water in the milk has evaporated. अब वो milk powder naturally milk जो होता है natural milk it is in liquid form and how it is being turned into powder. कैसे बनाया जाता है powder? You all must know. You are also studying science. कैसे turn होता है ये milk? Liquid से पाउडर फॉर्म में कैसे टर्न होता है ड्यू टू एवेपोरेशन ऑल वाटर इन द मिल्क हैज एवेपोरेटेड मिल्क का तमाम वाटर एवेपोरेट कर लिया जाता है उसको हीट अप करते हैं और
वाटर इवेपोरेट होता है तो उसके सॉलिड रेजिड्यू पीछे रह जाते हैं, विच इज टर्म्ड एज पाउडर्ड मिल्क. When fresh milk stays in a dish for a little time, जब फ्रेश मिल्क को हम किसी बर्तन में रखते हैं थोड़े देर के लिए, the thick part of the milk come to the top. तो उसका thick part top पे आ जाता है. How is it so? You might have experienced it at your homes. Sometimes when the milkman gives you milk and your mother is in a hurry and she has no time to just to boil it at that time, and she has to do some other work or go somewhere, she placed the milk, unboiled milk, in the fridge. And after an hour or two, when you take out that milk, you see that there is the thick layer. There is a thick layer on the milk. That thick layer, that thick part which comes to the milk, to the top of the milk, is called the cream of the milk. ये क्या होता है? It is the cream of the milk. जो आप क्रीम यूज करते हैं हम सैलड्स में, क्रीम सैलड्स में यूज करते हैं या किसी और डेजर्ट्स में यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्रीम ऑफ द मिल्क. फ्रॉम दिस क्रीम पीपल मेक बटर. और इसी क्रीम से लोग बटर भी बनाते हैं. बटर क्या है? मक्खन, ब्लू बैंड, मार्जरीन एक्सेट्रा, ये हम क्रीम से बनाते हैं. बट उसमें ये होता है ना कि उसको प्रोसेस किया जाता है फर्दर, तो उससे बटर बन जाता है. इफ मिल्क विद द क्रीम on it is made into powder, it is called full cream milk powder. Are you getting? If milk with the cream on it, अगर उस मिल्क को उसके ऊपर से क्रीम उतारे बगैर, उस क्रीम समेत, with the cream on it, उसी क्रीम समेत हम उसको इवेपोरेट करें और उससे पाउडर मिल्क बनाएं, देन इट इज कॉल्ड फुल क्रीम मिल्क पाउडर. तो वो कौन सा मिल्क कहलाता है? इट इज कॉल्ड फुल क्रीम मिल्क पाउडर. और समटाइम्स अगर उस दूध से, उस मिल्क से, व्हेन समथिंग फ्लोटिंग इज टेकन ऑफ द टॉप ऑफ अ लिक्विड, और अगर उस दूध से उसका जो क्रीम है वो निकाल ली जाए, और फिर तो उसको हम क्या कहेंगे? वी से इट इज स्किम्ड मिल्क. स्किम्ड मिल्क क्या होगा? व्हेन समथिंग फ्लोटन इज टेकन ऑफ द टॉप ऑफ अ लिक्विड, अगर उस लिक्विड की टॉप पे से फ्लोटिंग चीज यानी क्रीम उतार ली जाए, we say it is skimmed. तो हम उस दूध को skimmed milk कहते हैं. When the cream is skimmed from the milk, जब उस मिल्क से क्रीम निकाल ली जाए. The thin milk that stays is called skim milk. और thin milk यानी जो मलाई के बगैर, क्रीम के बगैर वाला मिल्क है, that is called skim milk. Skim milk is a good milk. It is also a good milk क्योंकि होता तो मिल्क ही है, but it has no fat in it. लेकिन उसमें फैट्स नहीं होती. यानी ये ऐसा मिल्क है जो डाइट कॉन्शियस पीपल, जो डाइटिंग पर हों या थोड़े हेल्दी लोग या ओल्ड एज लोग, वो यूज करते हैं स्किम मिल्क टू अवॉइड गेटिंग हेल्दी, टू अवॉइड गेटिंग फैट. इट इज नॉट गुड फॉर वेरी यंग बेबीज. लेकिन होता ये मिल्क ही है, लेकिन चूंकि इसमें फैट नहीं होती, एक कंप्लीट डाइट नहीं देता ये, सो इट इज नॉट गुड फॉर वेरी यंग बेबीज. बहुत छोटे बच्चों के लिए, आपकी उम्र के बच्चों के लिए स्किम मिल्क नहीं होता, बल्कि आप लोगों को कौन सा यूज करना चाहिए? फुल क्रीम मिल्क, यानी वो दूध जिसमें मलाई हो उसके साथ क्रीम हो. जी, the paragraph is clear to you? Now you must look for its answers. जी, first mention date at the top of the page and
Then come to the questions given in the end. Questions: is the milk in tins powdered or liquid? क्या टीन के डब्बों में दूध पाउडर फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में? यस बेटा साद, साद अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, something teacher. वालेकुम अस्सलाम 34। Hello. जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। Hello, Sanku. जी रीड आउट क्वेश्चन टीचर नंबर आवाज आ 1। रही है? हाँ जी आ रही है, आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। जी बेटा रीड आउट क्वेश्चन नंबर 1। टीचर क्वेश्चन देता हूँ। जी पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर उसका आंसर बताएं। टीचर, is the milk in tins? Is the milk in tins powdered or liquid? तो जी टीचर इसका आंसर ये होगा ना, it is powdered milk. बेटा आप इसी तरह जवाब देना जैसे क्वेश्चन है, द मिल्क इन टिन्स इज पाउडर्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज द मिल्क इन टिन्स पाउडर्ड और लिक्विड? जो टिन पैक्स में होता है मिल्क वो पाउडर फॉर्म में होता है या लिक्विड में? तो आंसर क्या होगा आपका? द मिल्क इन टिन्स इज पाउडर्ड। जी हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू? Azba Adil, unmute yourself. Assalamualaikum teacher. जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा Teacher, what जी becomes of the water in the milk? Teacher, the water in milk has evaporated. जी all the water in milk gets evaporated. Yes, teacher. Okay, thank you. Write down all of you. All the water in milk gets evaporated. जी मोहम्मद वहाज, unmute yourself. वहाज बेटा आप लोग साथ साथ रिप्लाई किया करें। मैं अभी आप जल्दी बोलें बेटा। कहाँ गायब हो गए हैं? मुबाहिरा उस्मान, मुबाहिरा उस्मान, unmute yourself. बेटा ऐसे तो नहीं होगा, एक इतने से एक लाइन के क्वेश्चन है आपके जिनके आपने आंसर करने हैं, उसमें भी आप लोगों कोऑपरेटिव नहीं हो। Why don't you answer? मुबाहिरा, unmute yourself. What's the use of your attending the class if you're not able to answer? अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा इतनी देर? चलें जल्दी से आप मुझे क्वेश्चन पढ़ें और फिर उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का। यस पहले क्वेश्चन पढ़ें। What comes to the top of the fresh milk when it stays a little in dish? जी now answer it. When fresh milk stays in a dish for a little time, the thick part of the milk comes to the top. यस वेरी गुड। तो इसमें इतना हेसिटेट करने की क्या बात थी? बी कॉन्फिडेंट अपॉन योरसेल्फ। ऑल ऑफ यू कैन रिप्लाई, और अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है नो प्रॉब्लम, आई एम हियर टू करेक्ट यू। जी एक और क्वेश्चन नंबर 1 का टीचर आप एक दफा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता देंगी? आप बताएं क्या लिखा होगा।
Which the milk contains powdered or Is liquid. powdered. Is powdered. The milk in tins It is is powdered milk. नहीं आप लिखें the milk in tins is powdered. जैसे क्वेश्चन है बेटा वैसे Okay, thank आंसर you. किया करें. अच्छा जी Okay. थर्ड क्वेश्चन का आंसर सबने लिया है. When milk stays a little in dish, the thick part comes to the top of the fresh milk. फ्रेश मिल्क हम उसी को कहते हैं ना जो रॉ मिल्क होता है, अनबॉइल्ड होता है. जी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हादिया. Assalamu alaikum, teacher. जी वालेकुम अस्सलाम बेटा. रीड आउट क्वेश्चन नंबर 4. What does the thick part of the milk have in it? The thick part of the milk has fat in it. Yes, the thick part of the milk has Fat in it. fat in it or cream in it. ठीक है, the thick part of the milk has fat in it. You are also right. Okay, teacher. जी नेक्स्ट क्वेश्चन. जी वहाज आपने तो मेरा ख्याल पहले भी अनम्यूट नहीं किया ना. आपको कुछ नहीं आता. अस्सलाम वालेकुम टीचर. जी वालेकुम अस्सलाम. पहले दिया आपने आंसर. टीचर जी पहले मुझे ऑप्शन नहीं आई थी. अच्छा जब option आपने नजर कहा आई था थी, ना. अब आ गई है. जी अब आ गई है. चलें अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर करें. रीड आउट क्वेश्चन नंबर 5. What is cream? जी It is thick part of the milk. जी it is the thick part of the milk that comes to the top and has fat in it. ठीक है. Write down you all. It is the thick part of the milk that comes to the top and has cream in it. And has fat in it. Is it clear to all of you? Yes. Okay. जी Anas Nabil, unmute yourself. जी क्या बात है बेटा. अनस अनम्यूट नहीं हुआ, आपको भी ऑप्शन नहीं मिल रही. अरूश नुमान. अस्सलाम वालेकुम टीचर. जी वालेकुम अस्सलाम. जी अनस हो गया अनम्यूट. जी ऐसा थोड़ी देर से ऑप्शन आई थी. जी 6 वाला बताना आंसर. जी पहले क्वेश्चन बोलें. What do people make from cream? यस. जी क्या होगा इसका आंसर. From this cream people make butter. Yes, people make butter from cream. People make butter from cream. ठीक है. दिस इज अबाउट द मिल्क. मिल्क हमारे लिए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम और इसके साथ साथ ये हमें फैट्स भी प्रोवाइड करता है. इसमें नेसेसरी फैट्स होते हैं, मिल्क फैट, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए बड़े एसेंशियल होते हैं. इसमें आप देखें कि क्रीम है जो इसका थिक पार्ट, वो क्रीम क्या है, इट हैज़ बटर. इससे हम बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, देसी घी जो हम अपने खानों में भी यूज़ करते हैं, और क्रीम हमारे डेजर्ट्स में यूज़ होती है और कई चीज़ों में, सैलड्स में, डेजर्ट्स में हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है. और इसी से हम काफ़ी वी कैन हैव
It's used in variety of things. ठीक है, सो मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर अस. और यंग बच्चों के लिए, आपकी एज के बच्चों के लिए, इट इज नेसेसरी दैट वी शुड यूज द मिल्क विद क्रीम. आपको फुल क्रीम मिल्क यूज करना चाहिए, स्किम्ड मिल्क यूज नहीं करना चाहिए. स्किम्ड मिल्क उनके लिए है जो थोड़े हेल्दी लोग हैं, मोटे हैं, वेट लूज करना चाहें, या अबव 40 जो हैं वो स्किम मिल्क यूज कर सकते हैं. आप लोगों को फुल क्रीम मिल्क यूज करना चाहिए बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ. ठीक है. नाउ इफ यू have any difficulty, any confusion about your syllabus, you may ask me.